I am Abhishek and welcome to my channel. Today we are going to start our chapter 2 of your civics or polity, that is federalism. But before starting my video, I will give you one or two instruction. The first thing, you have to keep paper and pen with you. जो भी चीज़ मैं आपको रिसाइट कराऊंगा, you have to note down and you have to make a notes of this chapter because this is very important chapter and this will be very helpful for you. Secondly, this chapter is little bit lengthier, but what my way will be, I will finish this lecture in one video only. But आपके पास options है. What you can do, you can watch half video, take a break, come again and again watch another half of the video. So that's all was the instruction. Let's start the chapter today. Today we are going to study about federalism. So first what I have done, I have divided this complete chapter into different subtopics. तो मैं आपको subtopics के नाम बोलता हूँ. What you need to do, you write down on your paper and we will discuss according to that subtopics also. So these are the subtopics for this chapter. First is the definition of federalism. Second is difference between unitary and federal system of government. फेडरल और यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस होता है, दैट टॉपिक. द थर्ड सब टॉपिक्स विल बी फीचर्स ऑफ अ फेडरल सिस्टम. फोर्थ विल बी टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म. फिफ्थ विल बी व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री. फिफ्थ विल बी पावर शेयरिंग अबाउट विच वी हैव स्टडीड इन लेक्चर 1. पावर शेयरिंग और डिवीजन ऑफ पावर, हाउ इट इज हैपनिंग. Next is how federalism is practiced in India. It means that how federalism has been happened in our country. Then we have decentralization and what are the rationales behind it. We will study about it. Then we have a structure of local self-government on rural area, in urban area. And the last topic will be what are the different deficiencies which are still in the local governments. So these all are the subtopics and we will go according to these subtopics only. I hope you all have noted down. So one by one we are going. The first topics we have federalism. What is federalism? Definition of federalism. So try to understand the complete chapter. First of all, this federalism has been taken from a Latin word that is foedus, जिसका मीनिंग होता है ट्रीटी और एग्रीमेंट. इट मीन्स दैट व्हाट इज फेडरलिज्म, द न्यू स्टेट और पॉलिटिकल सिस्टम. हियर व्हाट स्टेट मीन्स, जब आप यूपीएससी वगैरह प्रिपेयर करेंगे तो वहाँ स्टेट का काफ़ी वास्ट मीनिंग होता है, तो आपके वो समझ नहीं आएगा. सिंपली वहाँ स्टेट का मतलब है एक पूरा कंट्री लो. तो न्यू कंट्री फॉर्म्ड थ्रू treaty or agreement between various units. So this is known as federalism. Apart from this, I have told you in our chapter 1 कि वर्टिकल पावर शेयरिंग्स में आपको पता है कि वर्टिकल पावर शेयरिंग्स में हमारे पास सेंटर आता है, सेंटर के बाद स्टेट, स्टेट के बाद लोकल गवर्नमेंट्स. सो दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज बेसिकली अ फेडरल सिस्टम. तो आपके पास शायद लास्ट चैप्टर में क्वेश्चंस भी है कि जहाँ पर इस तरह का प्रोविजंस होता है कि देर इज पावर शेयरिंग बिटवीन द सेंटर स्टेट, these types of system is known as federal system. I think it's there is power sharing between center and state and these types of system is known as federalism. So I think that definition is clear. Now we will understand something, the difference between the unitary system and federal system. So what happens in unitary system, that in unitary system I will tell you that either there will be only one level of government. सपोज देर इज अ स्टेट गवर्नमेंट, तो यूनिटरी सिस्टम में क्या होगा, देर विल बी अ नेशनल गवर्नमेंट ओनली व्हिच हैज़ ऑल द पावर्स. जो एक सेंटर के पास गवर्नमेंट होगा उसी के पास सारा पावर्स होगा. इफ देर इज ओनली वन लेवल, इफ देर इज अनदर लेवल, इट मीन्स दैट इफ देर आर सब यूनिट्स टू दिस लेवल, दे विल बी ओनली ए सबऑर्डिनेट टू दैट सेंट्रल गवर्नमेंट. इट मीन्स कि सेंटर क्या करती है, उसको ऑर्डर पास करेगी और जो उस सब यूनिट्स को उसका ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा. तो दिस टाइप्स ऑफ सेंटर इज यूनिटरी सिस्टम. इट मीन्स दैट वी हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, स्ट्रॉन्ग सेंटर. तो दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज नॉन एज यूनिटरी सिस्टम, जैसा कि श्रीलंका का एग्जाम्पल आपने देखा था लास्ट चैप्टर में. बट इन फेडरल सिस्टम व्हाट हैपेंस, देर will not be only the center, power will be divided between different level of governments. जहाँ पर कि आपको पता है कि हमारे पास सेंटर है, तो फेडरल सिस्टम में क्या होता है, सपोज वी हैव टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ पर कि सेंटर है, स्टेट है, तो इन दोनों के बीच में क्या हो रही है, पावर शेयरिंग हो रही है.
एंड यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो सेंटर हो वो स्टेट को चलाती है या ऑर्डर पास करती है। इसमें क्या होता है कि दीज गवर्नमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल टू द सेम सिटीजन। जो सेंटर लेवल पर है वो भी इंडियन पीपल को रूल करती है, और जो सेंटर स्टेट लेवल पर है वो भी इंडियन पीपल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो वो ऐसा नहीं है कि वो उसका ऑर्डर पास करना है और उस ऑर्डर को फॉलो करना है। दे वर्क्स इंडिपेंडेंटली टू ईच अदर। सेंटर का अपना कुछ सब्जेक्ट्स है, आई विल टेल यू अबाउट इट, कि सेंटर का कुछ अपना सब्जेक्ट्स है, स्टेट का अपना सब्जेक्ट्स होता है। वो अपने अपने सब्जेक्ट्स पे वर्क करती है, और उस वर्क करने के अलावा क्या होता है कि वो इंडिपेंडेंटली काम करती है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन यूनिटरी एंड फेडरल सिस्टम्स। इन यूनिटरी वी हैव ओनली सेंटर, and in federal system we have different level of government which work independently. I think it's clear. So our two subtopics are cleared. Now we will understand few things. Before that we will see a diagram. Here we can say that this is I think earlier data, in which around 25 of the world's 193 country has federal political system. जो भी रेड कलर से है आप वो देखो, ये सभी कंट्री में अभी फेडरल सिस्टम है, अदरवाइज यूनिटरी सिस्टम अभी भी चल रहा है बहुत जगह। तो वी विल नो, आपको पता चल गया कि व्हाट इज फेडरलिज्म और फेडरल सिस्टम में होता क्या है। देर आर सर्टेन फीचर्स which will define federalism. तो there are total in your syllabus there are total 7 basic features of a federal country which you need to study, और आपको ये याद रखना है 10th level. There can be a question in your board paper that what are the different features of a federal governments, so try to understand it. These are the 7 different features of a federal system. The first feature is there will be obviously 2 or more level or tiers of government. मैंने आपको बता दिया है कि different levels of governments होगी, 2 or more. Initially it was 2, later on that local government was also added. Second features is that each level has its own jurisdiction. I already told you about it. Jurisdiction का मतलब होता है कि उनका अपना एक सब्जेक्ट होता है, अपना एक एरिया होता है, ये इंडिपेंडेंट वर्क करती है एक दूसरे से। दिस इज द सेकेंड फीचर्स। थर्ड फीचर विल बी, ये ज्यूरिसडिक्शन और सब्जेक्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड होते हैं। ऐसा नहीं है कि ओरली बोल दिया गया है कि आप इस पे वो लॉज बनाओ, आप इस पे लॉज बनाओ। ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये लिखा हुआ है, दैट हैज़ बीन स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट आर इट्स ज्यूरिसडिक्शन। सी आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज सो गुड कि वहाँ पर हर कुछ स्पेसिफाइड है, मैंशनड है। वो क्या है, लीगली ऑथराइज्ड है कि सेंटर के पास कौन सा है, स्टेट के पास कौन सा है, कंकरेंट कौन सा है। आई विल टॉक अबाउट इट. This was the third features of a federal country. Fourth is fundamental provisions, whatever they want to change, then it can't be changed by only one level of government, that is the center. It needs the consent of both the levels. जो सेंटर है और जो स्टेट हैं, दोनों लेवल के कंसेंट से ही आप फंडामेंटल प्रोविजंस को चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट features are, we have a court or judiciary which you can say that it's like a umpire. It has power to interpret the constitution and power of different level of governments. It means that court जो होती है वो अलग अलग लेवल्स पे इंडिपेंडेंट वर्क कर रहे हैं, बट उसका सुपरविजन, उसका चेक एंड बैलेंस कोर्ट, और जैसे कि हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, दे विल they are like check and balance to these different levels of governments. So this is also a feature of a federal system. When I will talk about that why India is a federal system, India has a federal system, there I will explain you कि इंडिया में क्या चल रहा है जिसकी वजह से मैं उसको फेडरल कंट्री बोलता हूँ। The next feature we have that sources of revenue for each level will be specified to ensure its financial autonomy. It means कि जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू आने हैं, जो कि सेंटर को टैक्स लगाना है, स्टेट को टैक्स लगाना है, ये सभी स्पेसिफाइड है कि सेंटर किसके ऊपर टैक्स लगा सकती है, स्टेट किसके ऊपर टैक्स लगा सकती है, कहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। तो दिस ऑल आर द स्पेसिफाइड। एंड द लास्ट एंड व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, दैट बेसिकली इट हैज़ ड्यूअल ऑब्जेक्टिव्स. One objective is to safeguard and promote unity of the country, and second, as our country is very big and there is too much diversity, so accommodate regional diversity is also the objectives of a federal country. So it means that these are the 7 fundamental features of a federal government. तो आप, आई थिंक दैट एवरीथिंग इज क्लियर फॉर कि फेडरल सिस्टम होता क्या है, फेडरलिज्म क्या है, उनके फीचर्स क्या हैं। बट इन द इंटायर वर्ल्ड इट्स नोट कि फेडरल सिस्टम का ये डेफिनेशंस पूरे वर्ल्ड के लिए सेम ही है। फेडरलिज्म आया था जहाँ पर कि आपका क्या हो रहा है
कि एग्रीमेंट बिटवीन वेरियस यूनिट्स हो रहा है, बट ये फेडरलिज्म कई डिफरेंट टाइप्स के हैं. इट मीन्स दैट आपको मैं बताऊंगा वन फेडरलिज्म, ये बेसिकली डिपेंड्स अपॉन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म. तो वी विल स्टडी अबाउट द नेक्स्ट सब टॉपिक्स, दैट इज द टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म. इन दिस फेडरलिज्म वन इज इंटीग्रेशन टाइप एंड वन इज डिसइंटीग्रेशन टाइप. तो आपको मैं बताता हूँ ये फेडरलिज्म कहाँ से आया था. व्हाट हैपेंड कि इन कंट्री लाइक यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, the type of federation is integration type, or we can say it by coming together federations. You have to keep in mind this coming together, नाम से क्लियर है कि coming एक साथ आना. तो उस टाइम पे फेडरेशन का फॉर्मेशन कैसे हुआ था, फेडरल कंट्री कैसे बना था, कि एट दैट टाइम अराउंड, एंड वन मोर थिंग यू शुड कीप इन माइंड दैट दिस यूएसए इट हैज़ ओल्डेस्ट फेडरेशन, ये सबसे पुराना है. 1787 के अराउंड में ये फेडरेशन आ गया था. 1787, ये आपको यहाँ है नहीं, मैं आपको एक्स्ट्रा डिटेल्स बता रहा हूँ. जिसमें कि है क्या, इसमें क्या हुआ था कि 13 स्टेट्स थे उस टाइम में, 13 स्टेट्स जो कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड थे, वो सभी स्टेट कंबाइंड होके यूएस का फॉर्मेशन किया था, यूएस फेडरेशन का फॉर्मेशन किया था. तो ड्यू टू दैट व्हाट विल हैपन, दे विल हैव इक्वल शेयरिंग ऑफ पावर, जो कि डिफरेंट यूनिट्स ने मिलके एक यूएस का फॉर्मेशन किया. दे विल हैव द इक्वल शेयरिंग ऑफ पावर, क्योंकि सब ने मिलके एक फेडरेशन का फॉर्म किया है. सो दोज टाइप्स ऑफ फेडरेशन विल बी नोन एज coming together federations. But the country like we, means India, Spain and Belgium, here you can see the country, that is India, Spain and Belgium, we have disintegration type of federation. It means that, that's why sometimes it's called कि India is a union of states, not federation of states. आर्टिकल 1 जब आप पढ़ोगे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें लिखा हुआ इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स. इट व्हाट इट मीन्स कि यहाँ पर जो फेडरेशन का फॉर्मेशन हुआ है वो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस हैं. इट मीन्स दैट ड्यू टू इट्स लार्ज पॉपुलेशन एंड कल्चरली डाइवर्सिटीज, इंडिया को क्या किया गया, छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज कॉल्ड स्टेट्स, अलग अलग स्टेट्स में किया गया था. ड्यू टू दिस प्रोविजंस, तो मैं आपको जब आगे पढ़ाऊंगा, एक्चुअली आपके सिलेबस में नहीं है, जो इंडिया जो होता है एक्चुअली इट्स अ क्वासी फेडरल स्टेट. क्वासी फेडरल क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेंटर के पास थोड़ा ज़्यादा पावर होता है, इट्स मोर पावरफुल. क्योंकि जब आप इमरजेंसी प्रोविजंस वगैरह पढ़ोगे, आर्टिकल 352, वी हैव 356, वी हैव 360, इन आर्टिकल्स में आपको पढ़ोगे कि सेंटर के पास सभी पावर आ जाता है, उसमें स्टेट का पावर कम हो जाता है, सेंटर के पास ज़्यादा पावर आता है. तो यू कैन सी दैट यूनियन, जो आपको यूनिटरी सिस्टम पढ़ाया था उसमें आपको बताया था कि सेंटर इज मोर पावरफुल. हियर वी हैव फेडरल सिस्टम, बट समटाइम्स इन एक्सेप्शनल केसेज वी हैव सिस्टम इन विच स्टेट इज सेंटर इज मोर पावरफुल. क्यों हुआ था, बिकॉज इट्स द यूनियन ऑफ स्टेट्स. यहाँ पर ऐसा नहीं है कि छोटे छोटे सभी प्रोविजंस ने मिलके एक फॉर्मेशन किया. ड्यू टू दिस प्रोविजंस वी हैव strong center, little bit strong centers, and different units will have unequal power. What it means कि जितने भी states बने हैं छोटे छोटे units, उनमें कुछ states depending upon their geographical area, depending upon the provisions, depending upon the situations, कई सारे स्टेट जिनको स्पेशल पावर दिया गया है. जैसे कि आपको पता है इन जम्मू एंड कश्मीर देयर वाज 370 एंड 35A आर्टिकल वाज देयर व्हिच हैज़ बीन डिसमिस्ड नाउ. तो उनको स्पेशल पावर था. जैसे कि आपको उत्तराखंड है, जैसे कि झारखंड, ड्यू टू इट्स ज्योग्राफिकल लोकेशन, नॉर्थ ईस्ट के कई सारे स्टेट्स हैं, उनको स्पेशल प्रोविजंस दिया जाता है, उनको फाइनेंशियली एड प्रोवाइड किया जाता है. देयर आर मेनी डिटेल्स. सो व्हाट हैपेंस कि दिस वे इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, but this type of federation is different from that of USA. In USA it was coming together federation, but in India it is holding together federation. I think it's clear. इंडिया को छोटे छोटे मिलके इंडिया को नहीं बनाया. इंडिया ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इट हैज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स, बट इट हैज़ अनइक्वल पावर, नॉट इक्वल शेयरिंग. बट इन केस ऑफ coming together federation there will be equal sharing of power. I think it's clear what is federalism, what are the different types of federalism, what are the features of federalism, everything is clear. Now I will tell you that what makes India a federal country. It's very simple. Whatever features you have seen in the federalism, these all are followed by India. That's why India is a federal country. But what I will do, I will make you a revision. मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ
कि क्यों इंडिया एक फेडरल कंट्री है, ताकि आपको रिकॉल भी हो जाएगा। तो आई हैव टोल्ड यू द 7 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। इट मीन्स दैट ऑल द 7 फीचर्स विल आर बीइंग फॉलोड बाय इंडिया। तो वन बाय वन आई विल टेल यू। द फर्स्ट, already we know that India has different level of governments. We have initially two tier of system, but after 73rd and 74th amendment we have third tier has been added, जिसमें कि रूरल लेवल पर पंचायत सिस्टम आया है और अर्बन लेवल पर म्यूनिसिपैलिटी सिस्टम आया है। तो वी हैव डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स। So this is the first feature which we are following. That's why India is a federal country. Number two, we have separate jurisdiction. I told you already. We have different jurisdiction means we have the subjects which has been in the 7th schedule of the constitution. These subjects has been written. मैंने आपको बताया है कि सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, कुछ भी ओरली नहीं है। तो इन दिस jurisdiction we have different subjects which has been mentioned very nicely in the constitutions. So basically we have, these are the different lists, these are the different subjects which have been divided. First we have union list. यूनियन लिस्ट में क्या होते हैं, ऐसे सब्जेक्ट्स जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, दोज व्हिच आर टू बी गिवन यूनिफॉर्मली इन द एंटायर कंट्री, दोज प्रोविजंस विल बी द कम्स अंडर द यूनियन लॉ. इट मीन्स दैट एनी लॉ related to that subjects will be made by the union list only, central government only. What are the different list, what are the different subjects? There are many. I will tell you few. Like we have foreign affairs, like we have banking system, like we have defense system, like we have communication system, like we have currency systems. These subjects will be included in the union list. It means that union has right to make laws on these subjects. इसमें क्या होता है कि स्टेट का कोई दखल अंदाजी नहीं होगा. दैट्स वाई टोल्ड यू इन द अर्लियर ऑल्सो दैट इंडिपेंडेंटली दे आर वर्किंग. सेकेंड, वी हैव स्टेट लिस्ट फॉर विच ओनली स्टेट कैन मेक द लॉज. क्या होता है कि डिफरेंट स्टेट्स के अपने अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू दे हैव गिवन सम सब्जेक्ट्स which only सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक द लॉ. तो ऐसे सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, जैसे कि पुलिस है, ट्रेड है, वी हैव कॉमर्स, वी हैव एग्रीकल्चर, वी हैव इरीगेशंस. वाई दिस सब्जेक्ट्स, क्योंकि ऐसे सब्जेक्ट्स जो है वो आपको डिपेंड करते हैं कि स्टेट का व्हाट आर द सिनेरियो ऑफ द स्टेट, उनके कंडीशंस कैसे हैं. दैट्स वाई दिस सब्जेक्ट्स हैज बीन गिवन इन द स्टेट लिस्ट एंड ऑन विच ओनली स्टेट कैन मेक द लॉ. Third list, we have concurrent list. It means that subject of common interest to both union government as well as state government. Some subjects like education is there, forest is there, trade union is there, marriage is there, adoption is there. These are the subjects on which both union as well as center both can make the laws. But if any conflict occurs, then law made by the union government will prevail. You have to keep in remember. Then so you know now कि we have union list, we have state list, we have concurrent list. But बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसको कि इंक्लूड नहीं किया गया है किसी में. तो व्हाट विल हैपन टू दिस? तो दोज सब्जेक्ट्स आर नॉन एज रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स. रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स, on those subjects union government will make the law. For example, we have computer software which has been not included in any of the list. That's why what happened, that in this center can make the law. So these are the separation of separate jurisdiction, different subjects. So this is the feature which is followed by India. That's why India is a federal country. एंड थर्ड, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो भी ये लिस्ट्स हैं वो 7th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन इट हैज़ बीन मेंशनड, जो कि मैंने आपको थर्ड फीचर बताया था कि इट विल बी मेंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट ओरली ओनली इट हैज़ बीन टोल्ड. दैट्स वाई इंडिया इज अ फेडरल कंट्री. फोर्थ फीचर वी हैव, आई टोल्ड यू अर्लियर दैट फंडामेंटल प्रोविजंस, इफ एनी लॉ दे आर मेकिंग, then all the tier of the levels, all the levels will have to consult. उनके कंसल्टेशन के बाद ही आप लॉज में प्रोविजंस में चेंजेस कर सकते हो. फिफ्थ, आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट जुडिशियरी. आपको पता है कि इट्स लाइक अ अंपायर. इट मीन्स दैट इट केस ऑफ एनी डिस्प्यूट बिटवीन द डिवीजन ऑफ पावर्स, आपको पता है कि इंडिपेंडेंट वर्क कर रही है, लेकिन कुछ भी अगर डिस्प्यूट्स होता है उनके बीच में, तो व्हाट हैपेंस कि दैट कोर्ट कैन carry on in order to what they can do it in case of any dispute. The division of power, high court and supreme court can make a decision कि किसकी फेवर में वो जाएगा. तो कभी भी आपको डिस्प्यूट्स होता है तो वो दोनों कर सकती है. तो दैट्स वाई इंडिया इज अ फेडरल कंट्री बिकॉज इट इज फॉलोइंग दिस फीचर्स ऑल्सो. वी हैव सिक्स्थ फीचर, दैट इज आई टोल्ड यू कि रेवेन्यू, पैसे से रिलेटेड बातें हैं कि जो भी रेवेन्यू कलेक्शंस होता है वो भी मेंशन्ड है कि
सेंटर किस मैटर पे रेवेन्यू कलेक्शन कर सकती है, ऑन व्हाट मैटर स्टेट कैन कलेक्ट रेवेन्यूज. So that's why what happens that this union and state government have the power to raise resources by levying tax in order to carry on the government and the responsibility assigned to each of them. It means आपका एक एग्जांपल मैं आपको अच्छे से आपको समझ भी आएगा. कोरोना का कैसे चल रहा था, तो वी हैव सीन दैट कि जब भी ये ड्रिंक्स, ये सभी ड्रिंक्स मीन्स हॉट ड्रिंक्स आई एम टॉकिंग अबाउट, ये सभी जब बंद हुआ था तो दिल्ली ने क्या किया, 300% टैक्स लगा दिया उसके ऊपर में. ऐसे अलग अलग गवर्नमेंट ने भी अलग अलग टैक्स लगा दिया. जैसे कि अभी पेट्रोल के ऊपर अलग अलग स्टेट ने अपने हिसाब से सेंटर ने टैक्स लगाया. तो अभी क्या है कि सेंटर को अगर उस, जैसे कि जीएसटी के अंदर वो किसी को भी नहीं आता है, उसी तरह से जैसे दिल्ली के अंदर स्टेट के अंदर वो जो टैक्स लगाने का फंडा है, उन्होंने ड्रिंक्स के ऊपर टैक्स को काफ़ी राइज किया, क्योंकि वो रेवेन्यू कलेक्शन का वो लिखा हुआ है कि दैट स्टेट्स कैन कलेक्ट द रेवेन्यू. That's why India is following these features. That's why India is a federal country. And the last but not the least, we already know that we have been safeguarded by our nation. उन्होंने हमारे कल्चर को भी सेफगार्ड किया है, हमारे इंडिया के यूनिटी को भी मेंटेन किया है. हाउ दे हैव मेंटेन दैट वी विल स्टडी नाउ, कि हाउ फेडरलिज्म हैज बीन मेंटेन्ड इन आवर कंट्री एंड हाउ इट हैज बीन प्रैक्टिस्ड. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. लेट्स अंडरस्टैंड इट. फेडरलिज्म समझ आ रहा है आपको कि डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट से अलग अलग इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं, उनके अपने अपने सब्जेक्ट्स हैं. और फेडरल कंट्री इंडिया इसीलिए भी है बिकॉज इट्स सेफगार्डिंग द यूनिटी ऑफ द नेशन एंड इट्स ऑल्सो द सेफगार्डिंग आवर कल्चर. हाउ दे आर डूइंग, लेट्स स्टडी इट. वी हैव जो फेडरलिज्म जो प्रैक्टिस्ड हो रहे हैं वो 3 वेज में हो रहे हैं. वन इज लिंग्विस्टिक स्टेट्स बेसिस, सेकेंड लैंग्वेज पॉलिसी, and third is center state relations. One by one I will tell you. The first thing is linguistic states. It means that जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था 1947 में, तो वी नो डैट वी हैव अ वास्ट पॉपुलेशन. अलग अलग लिंग्विस्टिक बेसिस पे बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स थे जो कि अलग अलग वो टूटना चाह रहे थे कि मेरे लैंग्वेज जो एक तरह के लैंग्वेज बोलने वाले हैं वो एक साथ होना चाहते थे. देयर वाज अ वास्ट पॉपुलेशन लाइक महाराष्ट्र, गुजरात वाज सेम. सो दिस वाज द कंडीशन. तो फॉर द फेडरलिज्म, टू मेंटेन द फेडरलिज्म व्हाट दे हैव डन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन लॉ 1956 एक्ट लाया गया. उसके थ्रू क्या किया गया कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस लैंग्वेज, इन दिस लैंग्विस्टिक बेसिस, पीपल हु स्पीक्स सेम लैंग्वेज शुड रेसाइड इन सेम स्टेट्स, ऐसा किया गया. इसका एग्जाम्पल्स महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, देर आर मेनी स्टेट्स which has been formed on those basis. So it will not be surprised because earlier states were, there were many old states which vanishes, many new states formed. What was the basis? The first basis was language basis. Linguistic basis के basis पे उसको अलग अलग state का form किया गया. Why? To maintain federalism in our country, to maintain the unity. Secondly, not only the language basis, many states have been created on the basis of area, boundary, and they have changed on the basis of their culture, ethnicity और geography. इन basis पे भी like examples is Nagaland, Uttarakhand and Jharkhand and Bihar. So these all are the states which have been formed on the basis of linguistic or cultural basis. But what happened कि many national leaders feared that it will lead to the disintegration of the country. It will lead to the disintegration of the country, and central government also resisted on this linguistic state division. But आज के टाइम पे we can see that India is still a united country. और इसका क्यों ऐसा है? Because we know that जितने भी लिंग्विस्टिक बेसिस पे अलग अलग स्टेट्स फॉर्म हुए हैं उनके हार्ट में इंडिया एज ए होल हमेशा एक देशभक्ति होती है. अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ दे आर स्पीकिंग वन लैंग्वेज एंड द पीपल ऑफ देयर लैंग्वेज आर रेसिडिंग टुगेदर, इट ऑल्सो बूस्ट्स देयर थाउट्स लेवल. तो उनका इंटरनल जो है ये इसको हमारे कंट्री को यूनाइट ही करता है, ये कभी भी डिवाइड नहीं किया. इसके अलावा इट हैज़ ऑल्सो मेड एडमिनिस्ट्रेशन वेरी ईजियर. So by this way federalism has been maintained in our country, it has been practiced in our country and it has worked very efficiently. Number 2 is language policy. Again this is a debatable talking. ये काफ़ी पॉलिटिकल डिबेट का टॉपिक है. आई वॉन्ट डिस्कस मोर अबाउट इट. सिंपली आई विल टेल कि फेडरलिज्म को मेंटेन करने के लिए, लाइक आई टोल्ड यू इन द चैप्टर 1, इन श्रीलंका व्हाट केसेस, आपको पता है कि वहाँ पर सिन्हालाज वर्सेस तमिल्स का केस, वहाँ पर सिन्हालाज को सपोर्ट किया गया
और तमिलियंस जो कि माइनॉरिटी में थे, तमिलियन जो स्पीकिंग पीपल, उनको दबाया गया। तो हाउ मच प्रॉब्लम्स दे हैव फेस्ड, बट आवर कंट्री इज़ फ्लेक्सिबल। तो हमारे कंट्री में फ्लेक्सिबिलिटी है। तो फ्लेक्सिबिलिटी होने की वजह से मैं आपको पहले इसके बारे में बताता हूँ। जो हिंदी था उसको आइडेंटिफाइड किया गया ऑफिशियल लैंग्वेज। रिमेंबर वन थिंग, हिंदी इज आवर ऑफिशियल लैंग्वेज, नॉट अ नेशनल लैंग्वेज। सो देयर शुड नॉट बी अ हिंदी इम्पोजिशन एनीवेयर। जिनको हिंदी बोलना है वो बोले, जिनको नहीं बोलना है देयर शुड नॉट बी इम्पोजिशन। बट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा क्यों हुआ था कि महात्मा गांधी ने बोला था कि हिंदी इज द लैंग्वेज ऑफ जन जन, जन जन की भाषा है हिंदी, तो हिंदी को ही एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। दैट्स वाई, बिकॉज 40% ऑफ आवर कंट्री इंडियंस आर हिंदी स्पीकिंग्स। तो व्हाट हैपेंड कि ऑब्वियसली हिंदी इज स्पीकिंग अबाउट 40%, बट देयर शुड नॉट बी इम्पोजिशन एज माई व्यू। जो अपने कल्चर को, अपने लैंग्वेज को बचाना चाहते हैं, लेट देम एक्सप्लोर। हिंदी भी रहने दो, उनके लैंग्वेज भी रहने दो। हिंदी के लिए अगेंस्ट भी किसी को नहीं जाना चाहिए और हिंदी के सपोर्ट में भी किसी को नहीं जाना चाहिए। जहाँ जो चल रहा है वैसे चले, बट इन कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट इज देयर कि हिंदी को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ प्रोविजंस हैं। दैट आई वॉन्ट टू टेल यू, क्योंकि इतना कुछ नहीं पढ़ना है। बट व्हाट हैपेंड दैट अपार्ट फ्रॉम दिस हिंदी, in the 8th schedule of the constitution there are 22, here 21 they have written, but actually it's 22 now. 22 language is in the 8th schedule of the constitution. apart from that 38 more languages हैं जो कि डिमांड कर रहे हैं 8th schedule में एंट्री करने के लिए। तो इतने सारे लैंग्वेजेस हैं हमारे लैंग्वेज में, तो अभी फेडरलिज्म को कैसे मेंटेन किया जाए? तो व्हाट हैपेंस इन ऑल द सेंट्रल एग्जामिनेशन वी हैव द ऑप्शंस दैट यू कैन टेक एनी ऑफ दिस लैंग्वेज। और स्टेट लेवल के जो भी कंसर्न एग्जामिनेशंस होते हैं मोस्टली दे देयर ओन, जो उनका लोकल लैंग्वेज है वो लोग ज़्यादा प्रिवेल करते हैं। बट सो हियर वी कैन सी दैट अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव 3 लैंग्वेज पॉलिसी। आपको पता है 3 लैंग्वेज पॉलिसी में 2 लैंग्वेज कैन बी एडमिनिस्ट्रेटिव, यूज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेशन, एंड 1 कैन बी यूज फॉर ऑप्शंस। Suppose we have Karnataka. Kannada is the local language here. So you can use English. Starting में English was used, but later on it was told that English will not use, but still English is being using everywhere because it's a common language for all of us. तो English एक language है, यहाँ का कन्नड़ा एक language है. Apart from that, they are also teaching Hindi in their schools. So this is the 3 language policy about which many discussions are going on. Many current scenario is there, but by this language policy, by these flexible policies, our condition is not like Sri Lanka. We have maintained our federalism. Number third is center state relations, by which we have maintained our federal structures. Why this relation has been maintained? To avoid the clash between different level of governments. I will tell you the reason. Before 1990 what was the condition? That सेंटर में जो भी गवर्नमेंट्स होते थे और जो स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट्स होते थे ऑलमोस्ट दे वेर द सेम। एवरी टाइम्स जो वहाँ पर गवर्नमेंट्स होता था नीचे भी वही गवर्नमेंट्स होता था, तो स्टेट का ऑटोनॉमी खत्म हो गया था। एवरीथिंग वाज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और बाय द बैड लक इफ एनी टाइम्स इन एनी राइवलरीज पार्टी कम्स देयर, then central government often misuses the constitution to dismiss that state governments. Many time it has been done that they have dismissed the state government on the basis of, there are many bases about which we are not going to discuss here. Before 1990 it was the provision, it was the condition, but center state relations kiya gaya after 1990. What happens? Many regional party came into the picture. From where the scenario is being changes, कॉलिजन गवर्नमेंट इज बीइंग फॉर्म्ड। यहाँ पर एक फेडरलिज्म मेंटेन स्टार्ट हुआ, रीजनल पार्टीज स्टार्ट हुए, जैसे कि बिहार में जदयू, जनता दल यूनाइटेड, आरजेडी इज देयर। इन यूपी वी हैव बहुजन समाजवादी पार्टी। इन दिल्ली वी हैव आम आदमी पार्टी। इन वेस्ट बंगाल वी हैव टीएमसी। इन उड़ीसा वी हैव बीजेडी। इन कर्नाटका वी हैव जेडीएस, वी हैव सीपीआई. In Chennai we have DMK, AIDMK. So these all are the regional party which has been come in the pictures. Coalition government have come, and due to that there has been check and balance. Now they can go to the Supreme Court. Many times they have gone to the Supreme Court, and decision has been come कि there they cannot dismiss the state governments. So you can see that this is the beauty of our constitution. This is the beauty of our federalism. In our country, this linguistic state basis, this language policy they have maintained, center state relations. By this policy, by this maintaining these things, what we have done, we have maintained a federal structure in our country, and India is a solid federal state.
आई थिंक दैट इट्स क्लियर टिल नाउ. अब हम लोग नेक्स्ट सब टॉपिक्स पे जाएंगे विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. सो वी आर ऑलमोस्ट अबाउट टू फिनिश द लेक्चर. So keep patience, have patience. I will finish your entire this chapter in one video only. You can watch. आप उसको पॉज कर करके देखते रहो, देख सकते हो, बट आई विल फिनिश हियर. सो नो द टर्म्स कम टू डिसेंट्रलाइजेशन. व्हाट हैपेंड कि इनिशियली आई टोल्ड यू वी हैव टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ पर कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट था. बट अपार्ट फ्रॉम दैट थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट केम इन द पिक्चर, दैट इज द लोकल गवर्नमेंट्स. That is known as decentralization. When power is taken from central and state government and given to local government, then this is called decentralization. Keep in mind these definitions and these ideas are very important for your subjects. Why was this needed? Because our population is a very high, population is very large. जो सेंटर और स्टेट के बेसिस पर वो रूल कर रहे हैं, बट लोकल लेवल्स पे कई सारे प्रॉब्लम्स हैं जिसको कि इतनी इजीली वो लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं. टू मेंटेन अ प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन इट वाज नीडेड in 73rd and 74th amendment, it was needed that local government is also needed. That's why this local government came into the picture, and this is known as decentralization. But what happened at that time when local government was formed, then election were also not being held regularly. Also there was no adequate resource, they don't have adequate resource, neither they have the powers. So this was the problems in our structure, in our federal structure. So what happens in 1992, constitutional amendment was made and certain provisions were made which you should remember. In the local level governments, what are the different provisions which were made to make it more powerful and effective? The first, regular elections was made mandatory. आपको elections करना ही पड़ेगा on the local government basis. Secondly, reservation to SC and ST was given. Thirdly, 1/3 of the seats was reserved for the women. Number fourth, state election commission, separate state election commission was formed for the election in the local governments. आपको पता है there is a state election of India, election commission of India. They will don't do the elections in local levels पर state elections commissions करते हैं. और इलेक्शन जो आपको सेंटर और जो एमएलए और एमपीज के इलेक्शंस होते हैं, देयर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट द इलेक्शंस. सो इट्स क्लियर. एंड नंबर फिफ्थ, some certain aid financially was given to this local government to enhance it. I think that it's clear. So these provisions were made at the local level so that our local government also should rise. तो लोकल लेवल्स पे आपको पता है कि गवर्नमेंट फॉर्म्स हुए थे, बट व्हाट वाज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स? दिस इज ऑल्सो माई सब टॉपिक्स. दिस इज द सेकेंड लास्ट सब टॉपिक्स ऑफ माई दिस लेक्चर, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स. सो वी विल डिस्कस अबाउट दैट. सो बेसिकली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स को वी कैन से इट बाय 3 टायर सिस्टम. वो 3 टायर अलग अलग है, सेंटर स्टेट लोकल, दैट इज 3 टायर डिफरेंट. ऑन द लोकल गवर्नमेंट ओनली देयर वाज अ 3 टायर सिस्टम. And this local level government you can divide into 2 parts, one for the rural, one for the urban. For rural I will tell you from bottom to top, I will tell you. So starting with the village level, so first this system is known as पंचायती राज system. Which system? पंचायती राज system इसको बोला जाता है. This is पंचायती राज system. In this panchayati raj system, the local level, the below level will be village panchayats. It means that 2 or more than 2, depending upon the population, villages, they will group together to form a village panchayat. From where what happens, from the villagers will only elect the members and head will be known as sarpanch or panch. So clear. Basic level, lower level पे village panchayat will be there, comprising of 2 or 3 villages together. So this is known as village panchayat. So what happens, they used to meet at least twice or thrice in a year to approve the annual budget of the gram panchayat and to review the performance of gram panchayat. तो local level पर सबसे minimum village panchayat. After combining these 2 levels we have panchayat samiti, block, mandal और तालुक level. Block, मंडल, पंचायत समिति और तालुक लेवल ऑल आर द सेम. सो लोअर लेवल इज विलेज पंचायत, मोर देन दैट इज ब्लॉक और तालुक लेवल, वेयर विलेज पंचायत व्हाट एवर फर्स्ट विलेजर्स विल इलेक्ट विलेज पंचायत, नाउ विलेज पंचायत विल इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ तालुक लेवल. एंड पंचायत समिति चेयरपर्सन विल बी द हेड.
Panchayat Samiti commissioner chairperson will be the head of the taluk level. I think it's clear. Village panchayat, then taluk level. More than taluk level we have जिला परिषद. तो सबसे नीचे विलेज पंचायत, देन ब्लॉक लेवल, देन जिला परिषद. जिला परिषद इट विल बी ऑन एट डिस्ट्रिक्ट लेवल के, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये होता है एट डिस्ट्रिक्ट लेवल. दिस इज जिला परिषद. व्हाट हैपेंस, हाउ मेंबर्स विल बी इलेक्टेड. फर्स्ट जो ब्लॉक और तालुक लेवल पर जो भी मेंबर्स इलेक्ट हुए हैं दोज विल इलेक्ट द जिला परिषद. एंड सेकेंडली ऑल्सो some honorary membership will be given to the MP and MLAs of that district. So remember these things. In Jila Parishad, first few members will be elected by the taluk level members, and few members will be honorary membership will be given to the MP and MLA of that districts, and head will be known as Jila Parishad chairperson. Jila Parishad chairperson. There was Panchayat Samiti chairperson. I think that's local level. Rural basis it's clear, 3-tier system is there. On the rural system we have village panchayat, then we have block or taluk, and then we have Jila Parishad. Now comes to the urban pictures. In urban government what happens, we have municipality or municipal corporations. So municipality will be for the towns level or small town level पे municipalities होते हैं, and citizens of that town will elect the members, and head is known as municipality chairperson. Similarly chairperson, everywhere it's chairperson, so municipality chairperson will be the head, and it's on the basis of municipality level, town level. But on the big cities, in the big cities like Mumbai, Bangalore, Delhi, we have municipal corporations, MCD. In Bangalore we have MCD, in Bangalore, in Maharashtra, in Delhi we have municipal corporations, and who will be the head? Head will be the mayor. So I think it's clear. Urban basis we have municipality or municipal corporation. In rural basis we have village panchayats, we have taluk, we have Jila Parishad. Now these are the local governments. So now let's come to the last topic, that is the deficiency. So we have seen that पहले हमारे पास 2 लेवल के गवर्नमेंट्स थे, सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर. देन वी हैव फॉर्म गवर्नमेंट्स ऑन द लोकल लेवल. लोकल में भी हमने डिवाइड किया विलेज लेवल पर और बाद में अर्बन लेवल पर. But apart from that we have many deficiency. Still many powers has not been transferred from state level to that village level. Also there is not adequate resource. Therefore till now a long way we have to go at the local levels. इसको बहुत ही strong करने की ज़रूरत है. So I think that's this chapter is finished now. I think it was a lengthier video, but what you need to do, you divide it in the 2 parts and you try to watch it in the 2 sections. half आप इसको देखो. So I think that federalism is very clear to you. From next we will see the chapter number 3. That's all for today. Thanks for listening and take care of your health, and thank you.